formally start our briefing session, and I'll start the session with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Respective participants, investors, welcome to the corporate briefing session. Before we start the proceeding, I would like to introduce to the participant about the SNGPL team. Here, Ali Javed Hamdani साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL. उनके साथ बैठे हैं फैसल इकबाल साहब, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. उनके साथ बैठे हैं कैसर मसूद साहब, सीनियर जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन. और हमारे मीडिया के और बिजनेस डेवलपमेंट के सीनियर जनरल मैनेजर जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. So I would request to the managing director to have few words about the company, and then a brief presentation will be given by the CFO. Sir. जी अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर कमिंग. ये हमारा ईयर 2019-2020 and first quarter 2020 and 21 का corporate briefing session है. So I'll be assisted by CFO साहब, by company secretary साहब, कैसर हैं हमारे distribution और क्या कहते हैं regions के, और जवाद नसीम साहब हमारे business development के. I'll be assisted by them. तो first of all हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हैं. कंपनी के जो की पैरामीटर्स होते हैं उनको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, नॉट ओनली एज मैनेजमेंट बट आल्सो आवर रिस्पेक्टेड बोर्ड इज फुली सपोर्टिंग अस. और ये जॉइंट एफर्ट ऑफ द बोर्ड, ऑफ द मैनेजमेंट, of the team, we are on the right way. We are calling it not a full turnaround, but we are calling it a turnaround where we are moving to betterment in terms of UFG savings, in terms of profitability, bottom line. So I'll briefly go through this, and then we will walk you through what the company is all about, what are our initiatives, what are we doing. So we have a glorious history of 50 years, you can see. We are a very stable, a very robust, a very structured organization of Pakistan, जो गैस के बिजनेस में है. और गैस इज नॉट ओनली ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन. अब तो बहुत वेरिएबल्स आ रहे हैं गैस में. अब तो आपके पास RLNG आ रही है, हम उसके बिजनेस में भी हैं, उसकी ट्रांसमिशन में भी हैं. तो वी आर व्हाट यू कॉल गोइंग टुवर्ड्स डाइवर्सिटी. Our mission and vision is well known. We are a natural gas to all doorsteps. We are an integrated gas company. Our vision is to be an integrated gas company, to be an energy company when it comes to gas. This is our basically diversity plan. थोड़ा सा आपको हमारी क्या कहते हैं मेन KPIs हैं. CFO साहब will assist me here. We are in 800 अरब रुपए की एसेट्स हैं. 800 बिलियन प्लस के हमारे एसेट्स हैं. 625 BCF की सालाना सेल है और ये ग्रेजुअली ग्रो कर रही है. 2020 का जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो रिलेटिवली कोविड की वजह से वाज ऑन अ लोअर साइड, बट ऑन एन एवरेज वी आर सेलिंग अराउंड इस साल 700 BCF प्लस. 600 बिलियन का रेवेन्यू लास्ट ईयर जनरेट हुआ है 19-20 में, विद a network of 145,000 kilometers. Our history is almost now 58 years, and with an employee base of over
nearly 9,000 people हम ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं. हमारा जो स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री, जो हमारे ऑफिसेज हैं, nearly 177 offices, and the consumer base has now crossed 7 million. ये अल्लाह का बहुत शुक्र है. So I mean, what this tells you is that we are pretty diversified. हम पूरे मुल्क में हैं, हमारा नेटवर्क भी है, हमारे लोग भी हैं, और इसके अंदर we'll go to the next slide and tell you that over 4 years, which is pretty phenomenal, हमने 34,000 किलोमीटर का नेटवर्क डाला, 1.7 मिलियन कंज्यूमर्स ऐड किए हैं. Talking about our people, 8,713 जो लोग हमारे हैं, we are spread over 16 distribution regions हैं हमारे, 3 transmission के बड़े regions हैं, and our presence in 42 cities across पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर and Islamabad Capital Territory exist करती है. 8,200 formal training hours we provide every year, and over nearly 15 million engineering hours. तकरीबन 15 million engineering hours हैं which we provide to our जो कि हमारे engineering resources provide to this country and to the organization. From a diversification point of, from a gender diversity, we are becoming more and more इस हवाले से conscious, and so the presently go number is relatively low, लेकिन वी आर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें राइट पाथ पे. हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत अपने एम्प्लॉयज़ में जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं. वी हैव अबाउट 211 फीमेल एम्प्लॉयज़, बट द गुड थिंग इज आवर बोर्ड इज चेयर्ड बाय अ चेयरपर्सन. शी इज an ex-banker and she has a lot of experience, and our senior management resources जो हमारे पास exist करते हैं, उनमें तकरीबन 15 फीमेल एम्प्लॉइज एट एग्जीक्यूटिव. देखें, जेंडर डाइवर्सिटी और फीमेल्स पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं. हमारी सीनियर मैनेजमेंट में हम इनकरेज कर रहे हैं, एंड आई थिंक वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर एन इक्वलेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. They add a lot of they have great ideas. So at SNGPL, we are promoting that very strongly. With regard to the shareholding proportionate, अगर हम डायरेक्ट देखें तो गवर्नमेंट की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग कंपनी में 32% है, जबकि इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग 24% है. क्यूमुलेट करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का 56% शेयर होल्डिंग है, whereas रेस्ट ऑफ द 44% शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है जो फ्री फ्लोट है, और ऐसे टोटल जो शेयर होल्डिंग कंपनी के है 634 मिलियन शेयर्स हैं. तो इसके बाद आई विल रिक्वेस्ट CFO साहब की एक डिटेल प्रेजेंटेशन दे दें, और उसके बाद फिर हम फ्लोर को ओपन कर देते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए. विल टेक योर क्वेश्चंस एंड विल रिस्पॉन्ड देम अकॉर्डिंगली. CFO साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विंग द कंट्री, आई वुड रिक्वेस्ट जवाद साहब को थोड़ा सा हमें एनर्जी मिक्स के हवाले से कंट्री के और कंज्यूमर मिक्स as well as reliance on RLNG पे brief सा communication करेंगे. Assalamu alaikum. A little bit about the Pakistan energy mix. We still have around 50%, 46% to be precise, gas dependent energy system. 11% LNG, 35% natural gas. Oil is 26, nuclear is 3, hydro is only 8 as it is depleting, LPG 1, and coal is 50%. So that is our energy mix at this point in time, while we grow more and more reliant on the gas and particularly the LNG. Our consumer mix, as you can see, the biggest part of our consumers are the domestic consumers, 36%. Followed by almost equal part, which is the power sector, again a very big consumer for us. Industry is 18%, CNG is 6%, and then fertilizer and commercial are 3%. So domestic and power, those are our biggest consumers, as you can see. A lot has been going on in the last 5-6 years, due to which obviously LNG had to be introduced in the system. There were massive load curtailments. Power stations were mostly being run on diesel and furnace oil and not on gas.
because of shortages of natural gas in the country. Industrial sectors में आपके 4 hours per day के minimum shutdowns होते थे. 50-60% of the industry was shut down. So taking that into account, the GOP decided in 14-15 to inject the LNG in our system. और जैसा कि आप देखेंगे कि LNG from 14-15 only 3% से बढ़ती 9-10-20 में 49%, और अब current year में it has actually come down to increase to 55%. So system gas is now only 45%, while the major chunk is LNG. There is a declining trend in the indigenous gas. So that means more and more reliant will be on our LNG as we move forward in the coming years. Okay, thank you. Some information about our numbers. ये हमारे 2019-20, 2019-20 के significant KPIs, insignificant numbers हैं. 2019-20 जो कि 2020 हमारा close हुआ है, उसके अंदर we generated about 6 billion का profit after tax as compared to 7.1 billion. There had been a decline of nearly 1.1 billion. इसकी बुनियादी वजह UFG का disallowance और financial charge का बढ़ जाना था. UFG disallowance में अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि हमारा UFG का disallowance 11.3 से तकरीबन इस मद में अलोन हमें तकरीबन 1.2 बिलियन की एडिशनल लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ी, एडिशनल लॉस हुआ पिछले साल के बावजूद इसके कि वी सेव्ड अबाउट 4 BCF की गैस. इस साल हमने 4 BCF की एक मैसिव UFG रिडक्शन प्रोग्राम इस वक्त इन प्लेस है. हाउएवर कॉस्ट ऑफ UFG इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से तकरीबन 1.2 अरब रुपया हमें UFG का डिसअलाउंस में एडिशन आई. जो सेकंड बिगेस्ट हिट थी, और एक्चुअली इट इज वाज द फर्स्ट द लार्जेस्ट हिट, वाज द इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट. 8 अरब रुपए से 11 अरब रुपए का चार्ज आया, जो कॉस्ट मुझे 8-9% पड़ रही थी. 19-20 में एवरेज बोरिंग कॉस्ट 12-13% तक जा रही. दैट रिजल्टेड इनटू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ 3 बिलियन nearly. 8 अरब से 11 अरब, और कपल्ड विद UFG का लॉस जो कि बढ़ गया तकरीबन 1 अरब से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा. नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसके अंदर हमारे वेरियस इनिशिएटिव्स हैं. हम आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन आगे जाके हम बात करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से भी ENP के लिए काम कर रहे हैं, EPC का कुछ काम कर रहे हैं. और हमारा जो क्रेडिटर जो है, डेटर जो है वो टाइटली पे नहीं करता तो लेट पेमेंट से चार्ज. नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो थी वो 3.2 अरब रुपए से 4.4 अरब रुपए थी पिछले साल. रिटर्न ऑन एसेट्स कैपिटलाइजेशन देखिए सालाना तकरीबन ऑन एन एवरेज 25 से 30 अरब रुपए की एक्सपेंडिचर पिछले 4 साल का हमने इनकर किया, और हमें इस साल पिछले साल की निस्बत तकरीबन 300 मिलियन ROA में भी खरीदा. तो नेट इम्पैक्ट इज दैट वी जनरेटेड अबाउट 6 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट एज कम्पेयर टू 7.1 बिलियन. इसके मुकाबले में अगर मैं अपनी फर्स्ट क्वार्टर को देखूं तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एमडी साहब ने फरमाया, सितंबर रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी 3.2 बिलियन फर्स्ट क्वार्टर 2019-2021 में वी अचीव एज कम्पेयर टू 1.9. There is a turnaround of 1.3 billion in the first quarter. अल्लाह का बहुत ही एहसान. इसमें बुनियादी वजह वही दो रही. इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो कि पिछले साल 2.7 बिलियन इंटरेस्ट कॉस्ट थी पहले क्वार्टर की, which came down to 1.6 बिलियन, और UFG के डिसअलाउंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11.66% से कम करके 10.10% की, और इसकी वजह से तकरीबन 700 मिलियन के करीब हमारी UFG का डिसअलाउंस कम हुआ. So in both together primarily contributed towards the reduction, towards the increase in our profitability and reduction of our losses. So you can see here that when I talked, we are in a turnaround mode. So ये first quarter is reflecting a very strong positive growth for the company, not only in terms of bottom line, but also in terms of savings in UFG. And these two key parameters will spur our growth and bring diversity. अगर हम अपने पिछले सालों के रिजल्ट्स देखें तो पिछले सालों के रिजल्ट्स are already public information. I don't want to bog you down with these numbers.
बट अहम तरीन इसमें बात है वो हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू। आज देखिए मैं 42%, 40 से 45% के दरमियान अपनी पे आउट दे रहा हूँ, मुसलसल दे रहा हूँ, लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए कि मैं 2017 में मैंने 44% डिस्ट्रीब्यूट किया था और मेरा रेट 148 पे था, मार्केट भी तकरीबन इसी इन्हीं पैरा लेवल्स पे थी। बट व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस मार्केट सेंटिमेंट्स में, आज हम 50 के करीब होवर कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल distributing 40% plus our profitability, and there aren't many changes to our key parameters, or we would like your support and role as stock exchange to boost the confidence of the investors. Little कुछ एक दो थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा मैं हमारी टैरिफ रजीम का भी। टैरिफ रजीम में देयर हैज़ बीन अ चेंज, इसका डिस्क्लोजर हमने अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक एक्सचेंज में दिया है। टैरिफ रजीम शिफ्ट हो गई हुई है फ्रॉम फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मॉडल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मॉडल। इसके तहत 2018-19 में पहली दफ़ा ओगरा ने डिटरमिन किया था वैक का रेट, और वो 17.43%। ये चेंज हो के बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, इसकी बुनियादी चेंज होके इस साल और नेक्स्ट 3 years is 16.6%। ये जो 16.6% है, बुनियादी तौर पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ROA में कमी आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम ओगरा ने डिप्रिसिएशन के रेट्स भी चेंज किए। उसकी वजह से जो एसेट्स की गो के लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है, वो तो ऑलरेडी स्पैन कर रही है 40 साल पर। हमारी किताबों में वो 16 years थी। ओगरा इसको सिंक किया है उसने सुई साउथ के साथ एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। सो ट्रांसमिशन के एसेट्स को 40 साल और डिस्ट्रीब्यूशन के एसेट्स को 20 साल, तो ये उसने मिक्स एंड मैच करके एक बैलेंस अप्रोच लेकर आया है एज कम्पेयर टू पहले जो डिप्रिसिएशन रेट्स थे हमारे, वो जब हमने 80s में वर्ल्ड बैंक का लोन लिया था, उस वक्त के पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड बैंक के कहने पर एक रखे गए थे ताकि वर्ल्ड बैंक का लोन जल्दी पे हो सके। बट नाउ सिंस दी वर्ल्ड बैंक का लोन काफ़ी अर्से से पे हो चुका हुआ है और हम जितने लोन्स हम ले रहे हैं वो अल्लाह का शुक्र हम टाइमली पे कर रहे हैं, देयर इज नॉट मच इशू है। ये डिप्रिसिएशन के रेट की एडजस्टमेंट आई है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ROA मैं पहले 16 साल में अर्न कर रहा था, वही ROA अब मैं 40 साल में अर्न कर रहा हूँ। तो देयर विल बी प्रोग्रेशन, जो रिडक्शन इन ROA है वो डिक्रीज कर जाएगी इन टर्म्स ऑफ उसका जो डिप्रिसिएशन की कॉस्ट। इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा स्टेबल होगी और ज्यादा UFG के बेंचमार्क के पर्सपेक्टिव में ओगरा ने मेंटेन किया वही बेंचमार्क जो पहले दिया था। 5% बुनियादी बेंचमार्क है और 2.6% फुलफिलमेंट ऑफ KMI से। सर आप भी थोड़ा UFG के हवाले से जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है ओवर द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर जो हमने फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज किए थे उसमें भी कोई 4.3 BCF सेव किया था हमने एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जो बॉटल नेक थे हमारे, जहाँ प्रॉब्लम्स थे कंपनी को, वो लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टेड एरियाज थे KPK के, जहाँ लॉस हमारी टोटल लॉस का 1/3 था। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि इस करंट जो फिस्कल ईयर अभी क्लोज हुआ है उसमें वो लॉसेस हमने तकरीबन 50% तक रिड्यूस कर लिए हैं और फर्दर काम हम जारी है ताकि वहाँ लोगों को लीगल कनेक्शंस हम दे सकें और नेटवर्क बिछा सकें, और जो वहाँ गैस चोरी के इश्यूज थे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो कंट्रोल किए जा सकें। इसके अलावा हम UFG कंट्रोल के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। तमाम हमारे जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो रिमोटली मॉनिटर हो रहे हैं, यानी 50% आज की डेट में हो रहे हैं और बाकी 50% इन द नेक्स्ट 6 months टू कम हम उनको रिमोटली मॉनिटर करेंगे। कहीं भी उनमें कोई गैस थेफ्ट या कोई भी और इशू होगा तो हमारे हेड ऑफिस के सर्वर्स से ही हम उसको मॉनिटर कर सकेंगे। हम अपने कमर्शियल कंज्यूमर्स पे EVC मीटर्स लगा रहे हैं। हम अपने डोमेस्टिक मीटर्स की टेक्नोलॉजी हमने इम्प्रूव की है, जिसकी वजह से, और हमने SMS लेवल पे UFG 425 SMS है वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। उसके नीचे हम ड्रिल डाउन करके अब TBS लेवल पे हम मीटर्स इंस्टॉल कर चुके हैं 800+, और मज़ीद भी हमें ओगरा से बोर्ड हमें इजाज़त मिली है और हम बाकी भी TBS पे मीटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम जो लॉसेस है उसको हम
फिक्स कर सकें कि वो किस जगह पे है। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, हम तमाम इंडस्ट्रीज़ पे साइबर लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे हर एंट्री पॉइंट कोई भी कंज्यूमर वहाँ हमारा जो नुमाइंदा जाएगा उसकी लॉग होगी एंट्री। और हम तमाम अपने सिस्टम्स को डिजिटाइज कर रहे हैं, हम GIS पे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीकेज रेक्टिफिकेशन को, चाहे वो अबव ग्राउंड है चाहे अंडरग्राउंड है, नेटवर्क एजिंग को, और हम अपने तमाम विजिलेंस की एक्टिविटीज़ को भी डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि हमारी जो वर्क फोर्स हो वो डिजिटल डाटा की सूरत में अपना जो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नज़र आए। जिस हमने थेफ्ट केसेस कोई 83,000 थेफ्ट केसेस पकड़े हैं जो फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है, हमने उन सब में बुक की हैं उनको जो थेफ्ट वॉल्यूम्स हैं। तो इस तरह हमने एक बड़ी एक स्ट्रक्चर्ड हमारा UFG रिडक्शन प्रोग्राम है, और जिसको इंशाल्लाह दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, एंड उसके रिजल्ट्स जो इस फिस्कल ईयर जो क्लोज हुआ है जब वो सामने आएंगे तो आप देख पाएंगे कि उसके रिजल्ट्स कितने प्रोमिनेंट हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया है UFG for a gas company is a very important parameter, and we have a 360-degree overview of that. तो हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, उससे हम टेक्नोलॉजी से भी यूज़ कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशनल नो हाउ भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा मिक्स जो है इट इज़ हैविंग पॉजिटिव व्हाट डू यू कॉल रिटर्न्स, इट इज़ हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो इंशाल्लाह हम इसमें और बेहतरी लाएंगे। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड टारगेट्स, आई मीन में इफ़ यू टॉक अबाउट इट, हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं, हम क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन ला रहे हैं, हम अपने सिस्टम्स को लेटेस्ट मार्केट बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जिधर हमें IT यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। हमारी कंपनी में एट दिस पॉइंट इन टाइम 7 मिलियन कंज्यूमर हैं, तो उनकी कस्टमर सर्विस पे मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा फोकस है, और उसको हम बहुत पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं और करेंगे, और भी इसको एनहांस करेंगे कि इसको डिजिटाइज किया जाए, इसको वेब बेस्ड किया जाए, इसको ऑनलाइन किया जाए। आजकल कोविड की भी पेंडेमिक है और बहुत कॉल तेज़ तरीके से फैल रहा है, उसकी लिमिटेशन के लिए हम टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ कर रहे हैं। CFO साहब कैन एलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर। ये जो 7,000 कंज्यूमर्स हैं, इनको प्रॉपरली सर्व करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो हमारी HR की कैपेसिटी बिल्डिंग है। दे आर आर एसेट्स, एम्प्लॉयज़ आर आर एसेट्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बाकायदा इंस्टीट्यूट डेवलप किया विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेडिकेटेड हमारे बोथ टेक्निकल जो वेल्डर्स से लेकर फिटर से लेकर हमारे सीनियर जनरल मैनेजर्स तक ऑल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन हम कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्लान्स लेके चल रहे हैं। अगर फिटर है तो उसको किस तरह ट्रेनिंग देनी है कि एक मीटर है उसको किस तरह क्लोज करना है, किस तरह उसको रेक्टिफिकेशन करनी है। सिमिलरली वेल्ड है तो उसकी किस तरह पूरी टेस्टिंग है, पूरा QA का निज़ाम है। उसके लिए एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, एंड वी आर ट्राइंग टू एनहेंस आवर कैपेबिलिटीज़ अदर सिटीज़ एज वेल। कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम हो रहा है ताकि हमारे जो लोग हैं वो इक्विप्ड हों। जब कंज्यूमर को कंप्लेंट आती है तो इंस्टेंट एक मैसेज जाता है कंज्यूमर को, और उस मैसेज का कंज्यूमर येस सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन के बाद येस और नो का रिप्लाई करता है। देन एट द सेम टाइम बोथ आर कॉल सेंटर्स एंड आर हेड ऑफिस टीम्स कॉल द कंज्यूमर ऑन सेलेक्टिव बेसिस। भाई आपको कल आए थे, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई रिसीव्ड अ कॉल यस्टरडे फ्रॉम अ कंज्यूमर, उसने मुझे अप्रिशिएट किया। उसने कहा जी मेरे पास बारिश में मूसलाधार बारिश हो रही थी और आए हैं, गैस कंप्लेंट थी, उन्होंने रेक्टिफाई की ऑन टाइमली बेसिस, एंड देन आई रिसीव्ड नेक्स्ट डे कॉल माय टीम। उन्होंने कहा कि आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए गए, आपसे कोई बदतमीजी नहीं की गई, जो आपका काम था वो आपकी सहूलत के मुताबिक एड्रेस हुआ। सो देयर आर वेरियस स्टेप्स वी वांट आवर कंज्यूमर कि जिस तरह पंजाबी का एक मुहावरा है कि सेल बादशाह है, आज हम कहते हैं हमारा कंज्यूमर हमारा बादशाह। तो इसी प्रिंसिपल पे हम लेके चल रहे हैं और इसी को आगे लेके चलेंगे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में वी हैव आइडेंटिफाइड कि कहाँ पर
हमारे अगर कहीं पर फैट नज़र आती है तो किस तरह ट्रिम करके हम उस फैट को कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड है जहाँ पर मेन यूएफजी के फोकसेस हैं वो आपको कैसे साहब ने पहले ही बताया है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, जीआईएस के हवाले से, स्काडा के हवाले से, ईवीसी रिमोट मॉनिटरिंग के हवाले से, और टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके हम अपने पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पर कंप्लेंट्स लो प्रेशर की सबसे ज़्यादा आ रही हैं। वो जीआईएस पे मैप हो जाता है, वो रेड हमारा वहाँ पर हॉट बन जाता है एरिया, उसको हम टारगेट करें कि यहाँ पर कितना ये पुराना नेटवर्क है। अगर 2 इंच का नेटवर्क है तो उसको 4 इंच करेंगे एंड सो फोर्थ। सो एट द सेम टाइम हम वी आर वेरी एक्टिव ऑन पब्लिक इमेज बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, और हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जी पब्लिक जो है, थैंक यू सीएफओ साहब, पब्लिक इमेज जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एज आई सेड के हम टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, हम कंज्यूमर्स को भी फॉलो अप कर रहे हैं। पब्लिक इमेज बिल्डिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको हम बहुत यूटिलाइज करते हैं अपने वो बिजनेस के लिए। इसको हम व्हाट यू कॉल, इससे हम इंटरैक्ट करते हैं और इससे यू नो वी कम्युनिकेट आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मैसेजेस टू द मार्केट। जी पॉसिबल क्वेश्चंस। नाम भी बता दीजिएगा। उस्मान नाम है मेरा। सर ये आपने जो एनुअल अकाउंट है जून 2020 के, ठीक है, जो क्वार्टर आपने बताया वो सितंबर 2020 है, मतलब हम काफ़ी पीछे हैं। ठीक सर, एक तो बात ये है कि देखिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ, हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन की, और रिजल्ट्स हमारे जो हैं ये बेस कर रहे हैं 1 साल पुराने, हम 1 साल पीछे हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मैचिंग में फ़र्क होगा, वो है। बहरहाल सर ये तो ऐसे एक कमेंट था दूसरा। अच्छा सर, हमारे पास एम्प्लॉइज़ जो है 8713 है, जो आपने जो बताया कि हमने 8200 डेज जो है वो ट्रेनिंग की, तो मतलब पर एम्प्लॉय अगर डेज दिए तो ये क्या सफिशेंट है पर अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा सर, फीमेल स्टाफ आपने बताया माशाल्लाह अच्छी बात है, आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ तो कम है, लेकिन आपने बताया एग्जीक्यूटिव्स में जो है वो आपने 15, तो परसेंटेज क्या है एग्जीक्यूटिव स्टाफ परसेंटेज, ठीक है। अच्छा सर ये हो गया। अच्छा आप कंज्यूमर्स पे और इस पे बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा आपने रिज़ल्ट बताया बहुत अच्छा सितंबर का, फर्स्ट क्वार्टर का, लेकिन सर अगर रिज़ल्ट को अगर आप बाइफरकेट करें, इसको आप थोड़ा डिटेल में लें, तो हमें जो कॉस्ट यूएफजी की सेविंग हुई 700 मिलियन हुई, जो आपके अपने रिकॉर्ड है। अच्छा जो वो फाइनेंशियल चार्जेस जो हुई है वो 1.1 हुई है, ये 1.8 आ जाता है, जबकि हमारा जो क्या ना जो डिफरेंस जो आ रहा है, अगर ये कैलकुलेट होता तो 3.7 होना चाहिए था, हमारे पास 500 मिलियन का हमें जो है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम हुआ है। एवरेज जो आप कह रहे थे एवरेज बढ़ा नहीं, कम हुआ है, क्योंकि यूएफजी सर ये तो एक हमारी खामी है, ये कोई वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस का कोई फैक्टर नहीं है, ये हमारी खामी है ये यूएफजी, ठीक है। अच्छा सर आपको यूएफजी बेंचमार्क क्या 7.6% है, वो मैं समझा नहीं, 5% आपको दिया हुआ है और 2.6% प्लस जो किया वो प्लस किस बेस पे किया हुआ है। मैं ओगरा की बहुत हियरिंग्स में एसएसजीसी में बहुत जाता रहा हूँ, अभी तो 1 साल से नहीं गया लेकिन बहुत जाता रहा हूँ। तो आप कस्टमर बेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या जो होती थी उसमें कस्टमर बेस कम करने की बात होती थी कि डोमेस्टिक को कम किया जाए, एक वो उसको टारगेटेड किया जाए, इसको सेक्टर्स वाइज। तो आप अच्छा फर्टिलाइज़र का हमारा इम्पैक्ट जो है इसका एसएनजीपी का सिर्फ 3% है, तो फर्टिलाइज़र को आप किस रेट पे दे रहे हैं, है तो बहुत मामूली वो मेरा इस पे एतराज़ भी था कि बहुत कम रेट पे उनको जा रहे हैं, लेकिन है 3%, तो ये आपके इतने ज़्यादा सवालात हो गए हैं, वी विल हैव टू आंसर देम वन बाय वन। तो मुझे गुजारिश मैं करना चाहूँगा, जहाँ तक आपने बिल्कुल सही फरमाया, पहला बात कि आपने कमेंट बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन इट इज़ रेलेवेंट फॉर बोथ ईयर्स एक्चुअली। 19-20 के लिए भी रेलेवेंट है और 20-21 के लिए भी रेलेवेंट है। हमारा जो हमारी जर्नी स्टार्ट 19-20 से भी पहले हुई, हमने 18-19 में अपना एक कॉम्प्रहेंसिव यूएफजी रिडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड उसका पहला साल 18-19 था जिसमें हमने रिजल्ट्स अचीव किए। 19-20 में हमारी गैस की रिडक्शन हुई, यूएफजी लॉसेस की रिडक्शन हुई। एंड ये जो जहाँ तक इस बात का जिक्र कि ये कोई हमारी खामी है, यस इट इज़ अ खामी, बट इट इज़ इनहेरेंट खामी। कोई भी सिस्टम दुनिया का चलेगा, कोई भी गैस कहीं से भी फ्लो करेगी, कोई भी पावर फ्लो करेगी, एनर्जी फ्लो करेगी, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्टैटिक नहीं है। Whenever you have a dynamic flow, चाहे पानी हो, चाहे पावर हो, चाहे गैस हो, चाहे आपकी गाड़ी ही चलती हो, फ्रिक्शनल लॉसेस आते हैं, सिस्टम लॉसेस आते हैं।
एक सिंपल बात, बट एट द सेम टाइम सर मैं बड़ा आसान आपको जवाब देने लगा हूँ। आसान और सर इसका आसान ये है कि आप शहर में चलाएंगे गाड़ी की कंजम्पशन कुछ और है, आप मोटरवे पे चलाएंगे, रिंग रोड पे चलाएंगे, कंजम्पशन कुछ और है। सामने होगा हमने बढ़ा है जब 7-8% तक हम उसको कम करेंगे, दोनों कंपनी एक दोनों कंपनी कम करते करते जो कहां तक पहुंच गया उससे सारी कंपनी लॉस में चली गई। जी एसएनजी के लिए चलो कवर सर मुझे इजाजत दें, मैं आपके सवालात का आंसर कर देते हैं, फिर आप मजीद सवालात करने होंगे कर लीजिएगा। हमें इजाजत दें, तो आपको अपने सवाल आपके सवाल क्रॉस करेंगे तो फिर शायद। नंबर 1 आपने जिक्र फरमाया कि ये दोनों साल, तो पहले मैंने जैसे जिक्र किया कि ये एक सफ़र शुरू हुआ 18-19 में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसका पहला साल, फिर 19-20 दूसरा साल, और 20-21 एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला यू विल सी द रिजल्ट्स। जहाँ तक है सेकंड, इस अभी तक इसका एक क्वार्टर आया है, हम लेट हैं यस, सेकंड और थर्ड क्वार्टर इंशाल्लाह हम सितंबर में रिलीज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फिर अगला आपने जिक्र किया 5% और 2.6% का जो अलग अलग हैं, तो जी बताएं। ये बेंचमार्क जो है ना, इसमें 2 कंपोनेंट है, जैसे आपने फरमाया 5 तो एक फिक्स कंपोनेंट है, जो चूँकि ये तो यूएसए और टेक्सास और सब जगह 5 तो मिनिमम बेंचमार्क है कहीं भी, और 2.6 है जो लोकल कंडीशंस कंपोनेंट दिया है ओगरा ने हमें, चूँकि कंडीशंस यहाँ वैसी नहीं है जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में है। फॉर एग्जांपल वहाँ लॉ एंड ऑर्डर एरियाज़ नहीं होते, यहाँ वो हैं। डेडिकेटेड कॉरिडोर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं कि आपको थर्ड पार्टी गैस लाइंस को डैमेज नहीं कर सकती, यहाँ वो इश्यूज़ हैं। वो 2.6 एक कंपोनेंट है जो वेरिएबल होता है, और वो एज सच 2.6 हमें अलॉट नहीं हो जाता। ओगरा ने फिर हमें 30 की मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स दिए हैं दोनों सुई कंपनीज को, और उसका ह्यूज डाटा इन्वॉल्व है उसमें। तमाम उसमें हर शोबे के की मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय, इंक्लूडिंग मीटर रिप्लेसमेंट, इंक्लूडिंग लीकिंग लाइन रिप्लेसमेंट, विजिलेंस एट्सेट्रा। वो 30 KMIs के अगेंस्ट हम परफॉर्म करते हैं, और उसका तमाम डाटा वो ऑडिट करते हैं, और ऑडिट के बाद फिर हमें स्कोर अलॉट करते हैं 100 में से, 100 के नंबरों में से, और फिर उन स्कोर के तनासुब से ये 2.6 का कंपोनेंट हमें बेंचमार्क में अलाउ करते हैं। अगला आपने सवाल पूछा था कि वन जो आपने 2 हमने आइटम बताए, एक तो फाइनेंशियल चार्ज की कॉस्ट एंड दूसरी यूएफजी की, लेकिन एक एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं, वो है हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स। जो टैक्स है ये जो अमाउंट डिटरमिन होगी, इसके बाद इसका टैक्स का इम्पैक्ट भी आएगा। तो बुनियादी वजह जो आप कह रहे हैं उसके अंदर 30% का टैक्स का इम्पैक्ट निकाल दें तो अप्रॉक्सीमेटली वही अमाउंट बनती है जो कि आप जिसका जिक्र फरमा रहे हैं, जो कि ऊपर आ रही है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है नंबर ऑफ आवर्स का, फॉर्मल ट्रेनिंग आवर्स, यस इट्स नेवर इनफ। वी कंसिडर कि हमने एक इसका बड़ा जामे प्लान बनाया है कि एवरी रिसोर्स को हमने एक नंबर ऑफ आवर्स टारगेट किए हैं कि ये आवर्स मैंडेटरी हैं। जिस तरह प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए उनके बाकायदा इंस्टीट्यूट्स की तरफ से फॉर्मल ट्रेनिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने CPD इतनी करनी। इस तरह हम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इस कल्चर को डेवलप कर रहे हैं कि आपका फॉर्मल ट्रेनिंग आवर्स आपके X% होने चाहिए ऑफ द टोटल आवर्स। फिर आपने फरमाया कि फर्टिलाइज़र को, तो फर्टिलाइज़र की नोटिफाइड रेट्स हैं जिस पे हम गैस को सप्लाई करते हैं। वी कैन नॉट चार्ज एनीथिंग मोर और लेस देन द नोटिफाइड रेट्स। फिर आपने फरमाया कस्टमर बेस का ताल्लुक, ये सोशल इकनॉमिक एजेंडा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके तहत पंजाब एंड KP में प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक सेक्टर बहुत ज़्यादा है, और इन कराची में एंड कराची में, सिंध में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। ये अभी तक के कुछ सवाल थे। इट्स मुनासिब परसेंटेज, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर इस वक्त नहीं है, मुनासिब है। अगर कमी होगी तो दूसरा ये था कि जिस तरह ये बहुत पहले ये बात हुई थी जो गैस की जो कंजम्पशन उसी था कि शॉर्ट हो जाएगा, तो 3-4 साल पहले कि इनको सोलर गीजर दे दिए जाए। तो सर अगर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं और आप अपने लेवल पे कुछ कर लें, उनका बिल बढ़ जाता है, वो बिल नहीं पे कर सकते, वो डिफॉल्ट में चले जाते हैं, इधर हमें गैस नहीं मिलती। कोई इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए अगर गवर्नमेंट लेवल। जो एनर्जी कंजम्पशन है इसके लिए आप पंजाब KPK में, हमारी ICT में और आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आप यहाँ पर सिंध में है, आपको हमारी एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन्स के मतलब इतना नहीं आपको आगाही हो सकी। लेकिन वी वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारी मीडिया कैंपेन थ्रू फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन पे देखें। हम 2 इनिशिएटिव्स पे बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं। एक सोलर गीज़र पे काम कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स को इंस्टॉलमेंट्स में सोलर गीज़र लेके दे रहे हैं, और दूसरा और अहम तरीन 2 और काम कर रहे हैं।
एक हम काम कर रहे हैं कि हर कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं एक टाइमर डिवाइस, उनके गीज़र पे लग जाती है, वो भी ब्लूटूथ से ऑपरेट होती है, वो भी हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। और तीसरा एक एनर्जी कंजम्पशन के लिए उनके गीज़र्स के अंदर कॉनिकल बैफल डलवा देते हैं जिससे हीट कंजर्व होती है। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं एनर्जी कंजम्पशन के, उसमें अहम तरीन है कि पब्लिक में इस गैस को ज़ाया ना की जाए, इसकी अहमियत को उजागर करना, इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पे चूँकि यहाँ पर सिंध में उसका इंटरेक्शन नहीं इतना ज़्यादा आता, वहाँ पंजाब में सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, एवरी मीडिया इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड एंड इंश्योर कि कंज्यूमर को ये अवेयरनेस हो कि वो तीली जला के चलता ना छोड़ जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह है, प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड, आज मेरा जो टैरिफ है डोमेस्टिक का लोएस्ट 121 रुपए और इंडस्ट्री का टैरिफ वही 121 की जगह 1000 रुपए के करीब है। तो मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि ये हमारे एज नेशन हमने अपने अंदर एनर्जी के अंदर एक भी जिस तरह आपने कहा कि वो क्या नाम है, जिस तरह आप टेक्नोलॉजी सर ये 4 साल पहले प्रोग्राम में बात हो चुकी थी इस एसएसजीसी को उस वक्त लगाना शुरू करें। अगर आप डिले है लेट है तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरा कहने सर एक कहने मकसद है आप ट्रेनिंग जरूर करें। अगर अब ये काम ट्रेनिंग वाला नहीं, अब इनको इम्प्लीमेंटेशन वाला, तो सर आपको थर्ड पार्टी इनको भी को हायर करें, आउटसोर्सिंग करें, जो सिस्टम में लीकेज है उनको आप खाली अपने इस पे हैंड पे ना रखें, दूसरों से भी करवाएं ताकि ये जितने से भी हो इतना फायदा है। अच्छा सर, दूसरा ये था क्या नाम है, ये एम्प्लॉयज के ऊपर, जिस तरह स्विस साउदर्न ने 2000 एम्प्लॉयज का कल आ रहा था इन्होंने निकाले, जो ये एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हुआ, एसएनजीपी को इसको क्या फर्क पड़ा, एसएनजीपी इस पे क्या डिसीजन लिया, इसको बेनिफिट है या उसमें कुछ इस तरह इसको बता देते हैं जी आप। हाँ अच्छा, ये तो हो गई। चलिए सर, बाकी अगर कोई किसी और के सवाल है कोई और नहीं, इनका जरा आप जवाब दीजिए, बताइए कैसे टेक्नोलॉजी की साइड पे। पहले तो सर यूएफजी कंट्रोल के हवाले से अपने टेक्नोलॉजी की बात की, दोनों सुई कंपनीज की यूएफजी फिगर्स में आधो आध का तकरीबन फ़र्क है। वी आर ऑन द बेटर साइड, तो जाहिर है कि वी आर एम्प्लॉइंग द टेक्नोलॉजी फ्रॉम डे वन। विजिलेंस का जो मेयार है हमारा वो बेहतर है। जहाँ लीक डिटेक्शन की आपने बात की, हम जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र लीक डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। फिर हम उसमें वो जो ऑन फुट टीम्स भी हैं और हमारी मोबाइल टीम्स भी हैं कि गाड़ियों के चलती जाएं और उस पर लोकेट होती जाएं। हमने और भी यानी ये भी यूज़ किया कि क्या हम कोई उसको ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकें, स्निफर डॉग्स कर सकें। वो छोटे पैमाने पे हम बड़ी लाइनों पे कर रहे हैं। हमारे जो हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनस एरियाज़ हैं, वहाँ हम स्निफर डॉग्स के थ्रू लीक डिटेक्शंस कर रहे हैं। और ड्रोन की हमने एक जो स्टडी की है वो हम कर रहे हैं। मेजर जो क्रॉस कंट्री लाइंस है, जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है। हम टेक्नोलॉजी इस वक्त जो बेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। लीकेज रेक्टिफिकेशन का हमारा, हम 5 years में पूरा अपना नेटवर्क स्कैन करते थे, अब हम कर रहे हैं कि 2 साल में हम अपना पूरा नेटवर्क स्कैन कर लेंगे। इसके बावजूद कि हमारा नेटवर्क साइज़ शायद वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड, और पाकिस्तान की दोनों कंपनियों में तो हम यानी मोर देन डबल नेटवर्क है। और रेक्टिफिकेशन भी हम विद इन द सेम ईयर जितनी भी से 40,000 के करीब हम लीक्स रेक्टिफाई करते हैं। कोई 1000 किलोमीटर 800-900 किलोमीटर लाइन रिप्लेस कर देते हैं जो ज़्यादा लीकिंग लाइन्स हो। सो इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव लीकेज तभी हमारी जो फिगर्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो रही हैं तमाम यूएफजी की साइड पे। मीटरिंग की साइड पे मैंने अर्ज़ किया हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। साइबर लॉक हैं, अल्ट्रासोनिक मीटर्स हैं। इसी तरह हम स्काडा तमाम इंडस्ट्रियों पे आ जाएगा ताकि रिमोट मॉनिटरिंग हो सके। आपकी बात दुरुस्त है, जहाँ कमी है हम उसको फास्ट पेस पे कवर कर रहे हैं। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है which you call an act that is binding upon all of us. So सुई सदन ने हमसे पहले उस पर एक्ट कर लिया और हमने भी कल we have taken action on that. So that is something we had to do. अब उसकी जो ramifications हैं और उसका जो है वो अब हम उसको evaluate कर रहे हैं. But as a first step, we have taken the decision and laid off those 700 people from Sui Northern. ये कुछ सवालात आए हैं थ्रू Zoom, इनका एक 1 by 1 करके आंसर कर देते हैं।
जूम पे ही सवाल आया हुआ है। जस्ट अ स्मॉल कमेंट, इट्स ओवरऑल बैलेंस शीट पोजीशन। एक्सपोजर टू सर्कुलर डेट क्या है, व्हिच हैज लेड टू सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन decline of the business. In 2017, your company's exposure to RLNG and subsidy claims from government were minimal, which did not hamper growth prospects. We would need more clarity on the business growth prospect in the presence of circular debt. सर जहाँ तक है RLNG का ताल्लुक, तो डायरेक्टली RLNG हमारे सर्कुलर डेट को सिर्फ इस हद तक मुतासर करती है कि जहाँ पर सब्सिडी के क्लेम्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कुछ पेंडिंग अगर हो, उसकी हद तक, या जब डाइवर्ट होती है RLNG टू डोमेस्टिक सेक्टर, उसकी हद तक उसका रोल एग्जिस्ट करता है। एंड दोज क्लेम्स आर पेंडिंग। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ द सर्कुलर डेट आर टेकिंग नंबर ऑफ डिसीजंस, नंबर ऑफ उस पे काम हो रहा है। और एक अभी हम प्रपोजल्स कुछ लेकर ECC में भी जा रहे हैं, जिसके अंदर बेशुमार, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज डिटेल्स कि उसके अंदर क्या क्या एक्शंस लिए जाने का इम्कान है। पावर के लाइन पे ही जिस तरह पावर में मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर की गई हैं इन द पास्ट, उनसे सिमिलर ऑप्शंस की मतलब बात की जा रही है। फिर आपने अगला फरमाया, व्हाट इज द गाइडेंस ऑन UFG लॉसेस फॉर FY21। इसके हवाले से थोड़ा सा अभी रिजल्ट्स आने दें आपके पास। नेक्स्ट वीक सितंबर में इंशाल्लाह ताला हमारे 2021 के 6 मंथ्स, हाफ ईयर एंड 9 मंथ्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स very visibly there. अगला आपने सवाल किया है, what is the share of SNGP in North South gas pipeline? जी, North South gas pipeline की, as you know, it was covered in the media also. The Russian national entity and the Pakistan national entity की 24-25, Russian nominated entity and Pakistan nominated entity की मीटिंग्स हुई हैं 24, 25 और 26 अगस्त को। इसमें दोनों साइड्स की टीम्स बैठी हैं। इसमें सुई नॉर्दर्न की भी पार्टिसिपेशन थी। इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो प्री फीड एंड फीड लेवल, दैट इज़ क्या कहते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। उसमें क्या कहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, नो हाउ शेयरिंग, कि हम लोकली क्या कर सकते हैं और बाहर से क्या आ सकता है, उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है। एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। सुई नॉर्दर्न का आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वी विल गेट क्वाइट अ बिट ऑफ लोकल शेयर इन दैट, बिकॉज द सुई कंपनीज, वी आर लोकली एस्टैब्लिश्ड, वी आर लोकली इंस्टॉल्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ नो हाउ। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। आपने कल न्यूज़ में ही पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर के दरमियान बात भी हुई है और ये प्रोजेक्ट उसमें डिस्कस भी हुआ है। सो इसमें क्या कहते हैं, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। इसमें दोनों का मुल्कों का बहुत फ़ायदा है। सुई कंपनीज अपनी टोटल नो हाउ जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगी एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें इसमें बहुत सब्सटैंशियल लोकल शेयर मिलेगा। अगला सवाल आपने फरमाया है, इन द रिसेंट ईयर ERR 21-22 देयर वाज अ चेंज इन ऑपरेटिंग एसेट्स अलाउड बाय ओगरा, व्हाई वाज इट? देखिए, ओगरा का जहाँ तक ऑपरेटिंग एसेट्स अलाउ, उन्होंने इन प्रिंसिपल तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने सेट आउट की थी वो अलाउ की है। देयर आर सर्टेन इंटरप्रिटेशंस, उस हवाले से वी हैव टेकन अप द मैटर विद ओगरा कि इसके हवाले से हमें इंटरप्रिटेशन में कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दोज क्लैरिफिकेशंस कमिंग सून। अगला सवाल आपने ये फरमाया है कि व्हेन द न्यू टैरिफ रेजिम वाज इशूड, Kybor was 6%, then Kybor moved to around 14%. Why wasn't the WACC plus minus change of 2% triggered, leading to increase in ROE? ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये ट्रिगर हुई थी और इस वक्त ये मैटर ऑलरेडी ओगरा के पास पेंडिंग इश्यूज में ये मौजूद है। What is the difference in percentage total cost of gas per unit versus actual price per unit right now? असल में जो कंज्यूमर प्राइस है वो तो हर कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर के लिए डिफरेंट है, तो इस तरह डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। लेकिन जो हमारी प्रेस्क्राइब प्राइस है उसके अंदर तकरीबन जो सिस्टम गैस है उसका तकरीबन 70% और RLNG के केस में तकरीबन 90% कॉस्ट ऑफ गैस है। एक अगला सवाल पूछा गया है, सर कैन यू प्लीज शेयर वन करंट UFG एंड करंट अमाउंट स्टक इन सर्कुलर डेट एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 20
300 अरब रुपए के करीब स्टक था सर्कुलेटेड में, तो तकरीबन जो उसका मोमेंटम पेस की ग्रोथ का पहले था उतना ही है। एग्जैक्ट नंबर्स आपको 9 मंथ के अकाउंट में नज़र आ जाएंगे सर। ओगरा हैज़ रिड्यूस द ऑपरेटिंग एसेट्स, और करंट यूएफजी का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी आपको 9 मंथ्स के अभी अकाउंट्स अगले महीने में पब्लिश हो रहे हैं, उनमें आपको यू विल बी एबल टू सी। ओगरा हैज़ रिड्यूस द ऑपरेटिंग एसेट्स फॉर द कंपनी बाय 21 अरब फॉर FY22 ERR as against FY21 RERR. Any comment on the management of this, and can we expect operating assets to continue its downward trajectory? देखिए, ये जो ऑपरेटिंग एसेट्स की में जो पहले पिछले कुछ सालों में इंक्रीज आया था वो बुनियादी तौर पे RLNG का इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप था। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है वो उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उन कंज्यूमर्स तक गैस की रसाई पहुँचाना जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ में मौजूद हैं और उन्होंने एप्लीकेशंस कुछ अरसे से दी हुई हैं, और दूसरा गवर्नमेंट के सोशो इकोनॉमिक एजेंडा के तहत गैस को उन लोकेशंस पर ले जाना जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है। तो इन दोनों में इस वक्त आज भी हमारे पास एक सफिशिएंट बैकलॉग एग्जिस्ट करता है फॉर उसी पेस पर ग्रो करने के लिए जिस पेस पे हम ग्रो कर रहे थे पिछले 3 साल से, फॉर नेक्स्ट 3 years एटलीस्ट। It will all be dependent upon ओगरा एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उस मोमेंटम को किस हद तक हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा, अगला सवाल आपने पूछा है, इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग LNG प्राइसेस कैन यू प्रोवाइड अ सेंसिटिविटी ऑफ UFG लॉसेस टू एवरी $1 इंक्रीज इन LNG प्राइस। तो LNG इस वक्त की जो ट्रांजेक्शन्स हैं रिंग फेंस ट्रांजेक्शन्स हैं। इन रिंग फेंस ट्रांजेक्शन्स में LNG पे डॉलर की इंक्रीज या ब्रेंट की इंक्रीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। तो हमारे UFG लॉसेस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि रिंग फेंस्ड है, और ओगरा ECC की गाइडलाइन के मुताबिक ये कंज्यूमर को पास थ्रू आइटम है। वेयर डू यू सी द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कमिंग फ्रॉम FY21 एंड बियॉन्ड? वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमने जो स्टेप्स लिए हैं और ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला टारगेट कि हम इस ग्रोथ के मोमेंटम को मेंटेन कर सकें, इफ नॉट इसको इंक्रीज कर सकें। How do you see the LNG business for the company if evaluated on a stand-alone basis and keeping in view the mounting LNG prices and inability to recover the prices when supplied to domestic sector? Does it add any value to the company? देखिए, LNG या RLNG is a reality. देखिए, LNG is a reality, और जैसे हमारे जवाद नसीम साहब ने आपको एक्सप्लेन किया था कि from 3% contribution it's up to almost 50-50. तो LNG को तो we'll have to deal with it as a reality and we are working with it. अब हमारे power consumers LNG पे हैं, हमारे industrial consumers LNG पे हैं, और अभी जितने भी special economic zones और further growth हो रही है ये भी mostly LNG based होगी। अगला सवाल आपने पूछा है, what is the UFG benchmark for LNG gas supplied, same as the natural system gas, and what is the recovery mechanism of UFG on LNG, and can you quantify any gain loss on account of LNG UFG? इसका जो बेंचमार्क है वो ECC की गाइडलाइन में मौजूद है, और एज पार्ट ऑफ दैट वो कंज्यूमर को चार्ज हो रहा है रिंग फेंस अरेंजमेंट्स में। सो एज सच देयर इज नो गेन लॉस टू SNG। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन को एज वी स्पीक टुडे बॉटम लाइन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा एज पर अरेंजमेंट्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। हाउ डू यू सी द रीसेंट डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन इन WACC ऑफ द कंपनी? व्हाट फाइनेंशियल इम्पैक्ट विल इट हैव फॉर इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी? देयर विल बी इम्पैक्ट, जैसे हमने अपने डिस्क्लोजर में टू द स्टॉक शेयर होल्डर्स को बताया था कि देयर विल बी एन इम्पैक्ट। हाउएवर इसका लार्जली ये इम्पैक्ट कवर हो रहा है विद द रिडक्शन इन डिप्रिसिएशन रेट्स। सो कंपनसेटिंग इम्पैक्ट है इन दोनों का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फॉर द ईयर FY 2021-22 देयर विल बी सम इम्पैक्ट जो कि हमने डिस्क्लोज किया है। Given the dwindling local gas supplies and very expensive LNG gas rate, what is the outlook on gas transmission and distribution business? देखें जी, the gas transmission business, of course, the transmission system does not differentiate whether it's local gas or LNG. So that will continue, and we are enhancing our pipeline network on the transmission level, and we talked about the Pakistan-Russia pipeline, which we call the Gulf Stream. वो हो रहा है,
and it is still cheaper than other fuels. When it comes to the distribution network, of course, it has an impact on our domestic users, and that is something that we are looking into. And maybe you can elaborate what are our plans on that. Basically, as MD Saab pointed out, one thing is there, we are losing around 100 mmCFD of indigenous gas every year, and LNG use is going to go high and high. And even it used to be a north specific thing, but even in the south now, we are facing major shortages in the winters. So it's very evident that the country is in a net shortfall position. The only alternate that we have available at this time is LNG. LNG is still cheaper than obviously running power plants on diesel, furnace oil, so on and so forth. Unfortunately, we have not done a very good job with utilization of LPG cylinders at our home, and we are still hooked on to the pipe supplies. So there is no other pipe supply which is going to be cheaper than this. This will come at international fuel-based prices, but again cheaper than the other course of actions. The government of Pakistan is actually working on some of the ways to provide relief to the people. One of such options was to have a weighted average cost of gas thing, in which LNG price and the system gas baskets are combined, and then there is a separate price worked out, which is actually more acceptable to the business industry, to the common man as well, so that the price shock is much severe compared to what is it at this point in time. So those kind of mitigation strategies are going on, and I'm sure that in the due course of time the solutions will be found, because as our reserves continue to dwindle, we have to rely more on imported gases. So just a clarification, मेरा सब माइक अनम्यूट किया था, मेरा सवाल पूछा आपने अभी कहा कि वैट का ±2% ट्रिगर हुआ था और ये पेंडिंग है. Did I hear this correctly? ये यही है कि पेंडिंग है एसएनजी? जी, हमारे एंड से ओगरा के पास ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है. अच्छा, इसका रेजोल्यूशन किस तरह होगा? क्या क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गया है, तो ये नलिफाई नहीं हो जाना चाहिए? ये तो अब ओगरा पे डिसीजन पे डिपेंड करेगा. देयर इज एन अथॉरिटी, उनका एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के तहत ही वो सारे मामला तय होंगे. अगला आपने सवाल पूछा हुआ, यू मेंशन दैट यू हैव ब्रॉट डाउन द यूएफजी इन एमएमसीएफ. दैट मे बी ट्रू, बट ड्यू टू कंसिस्टेंट राइज इन गैस प्राइसेस, स्पेशली after LNG import, the PKR based UFG is on the rise. So what is the plan to bring down UFG in Pak rupee terms? So जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि LNG इस वक्त प्राइस का इससे डायरेक्टली रिलेशनशिप हमारे UFG लॉस के साथ नहीं है एज वी स्पीक टुडे. आज तो नहीं, और वो रिंग फेंस अरेंजमेंट के तहत अलग हो रही हैं, और जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो लोकल गैस के प्राइस के इंक्रीज with considering dollar rupee parity as well as Brent prices उसके मुताबिक हुई है. सो LNG प्राइस में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है. और जहाँ तक ताल्लुक है कि उसका इम्पैक्ट हमारी प्राइस में क्या आ रहा है, तो वो ऑलरेडी जो इस वक्त UFG डिसअलाउंस है वो करंट कॉस्ट ऑफ गैस पे ही वैल्यू हो रहा है, एज वी जस्ट डिक्लेयर्ड September और वी जस्ट क्लोज्ड 2020. ये करंट कॉस्ट ऑफ गैस पे ही वैल्यू हुआ था. इसीलिए अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि 4.3 BCF की सेविंग, हमारा जो UFG डिसअलाउंस था पिछले साल का, वो पिछले साल 18-19 से थोड़ा सा ज़्यादा ही था. अब कुछ और क्वेश्चन है? जी जी. ये दोनों अभी पार्ट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस मेजरमेंट. इसके दो हिस्से हैं सर. एक है जो सिस्टम गैस इंडिजिनस पे है, उसकी इंटरेस्ट इनकम भी और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, दोनों ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, ऑपरेटिंग रिजीम का पार्ट है. और जो RLNG है उसका जो इंटरेस्ट इनकम है और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, दोनों नॉन ऑपरेटिंग रिजीम का हिस्सा है. ठीक है. और सर एक फॉलोअप क्वेश्चन है जो भाई साहब ने किया है कि पाइपलाइन पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है और जो बात चल रही है टेक्निकल डिस्कशन, तो उसमें मुझे शायद मैंने मिस कर दिया, मुझे ये
देखें जी, मैंने जैसे बताया है कि वहाँ अभी डिस्कशंस हो रही हैं और रशियन नॉमिनेटेड एंटिटी एंड पाकिस्तान नॉमिनेटेड एंटिटी में अभी प्री फीड एंड फीड डिस्कशंस हो रही हैं। जो हेड ऑफ टर्म की डिस्कशंस हैं वो अभी फाइनलाइज होनी है। ये वंस दोज आर फाइनलाइज तो ये सारे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, ROA एंड एवरीथिंग would be what you call firmed up over there. अभी आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू टॉक ऑन दैट। तो अभी तो हम टेक्निकल डिज़ाइन कैपेसिटी, उसका राउट, उसका स्ट्रक्चर, उसको देखा जा रहा है। ये आई थिंक थोड़ा सा अभी देर में ये टॉपिक, आई मीन इन अ बिट ऑफ टाइम दिस वुड बी डिस्कस्ड। मेरा क्वेश्चन ये था आपका, स्वीगैस के जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्वीगैस सोसाइटी 1 है, सोसाइटी 2 है, उसके एक तो आपने कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और सेकंडली आपका जो फेज 2 है दैट हैज बीन आई थिंक स्टार्ट फॉर ईयर नाउ, तो उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, क्यों डिले है? जो मेरे दिल में आया वो शायद ये कि वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू है, इस तरह के हैं, तो इफ यू कैन अपडेट ऑन दिस प्लीज। जो स्वी नॉर्दर्न ऑफिस, ये जो सोसाइटी है स्वी गैस की फेज 1 एंड फेज 2 इज नॉट ओन्ड बाय स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। ये इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट जो कि स्वी नॉर्दर्न के एग्जीक्यूटिव्स की ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बनाया हुआ है, उसका ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट इसको मैनेज करता है। उसके क्या इश्यूज हैं, वी आर नॉट प्रिवी टू देम। जो आपने पाकिस्तान रशिया गैस पाइपलाइन को आपने कमेंट किया कि इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस होंगे, वैसे ये आपके ओपिनियन जानना चाह रहा था कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो पाकिस्तान का कंपोनेंट है रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, दैट हैज टू बी पेड बाय द GIDC अमाउंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज्ड इट्स परसेंटेज इन दिस प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट GIDC अमाउंट इन दैट। तो आप जो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव implication होगी, ये किस तरह से पॉजिटिव implication होगी? Wouldn't the JDC amount be utilized in it? Would you be or SNGP be investing in it? जी, देखें, इस वक्त as I've said earlier, it is a joint project between the government of Pakistan and Russia. इसकी जो equity participation and इसका है, those discussions are going on, and as SNGPL, I or my company, we are not privy to that information. मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस पे पूरी एक डिटेल ब्रीफिंग गवर्नमेंट की तरफ से आएगी once things are firmed up in a bit of time. Okay, एक और मेरा सवाल था। सेकेंडली आपने कमेंट कहा था कि जो वैट था वो 2+ माइनस का जो ये ट्रिगर हुआ था उसको ऊपर इट्स पेंडिंग विद द ओपरा। कैन यू शेयर कि करंटली कितने इश्यूज हैं जो ओपरा के साथ पेंडिंग है आपके, लाइक बिकॉज़ हर साल ऑन एवरेज आप KPI जो होता है वो ओपरा हमेशा कम सेट कर देता है, यूजी के लिए भी इस तरह से इश्यूज भी है, तो ओपरा ये कितने सालों से पेंडिंग है? कैन यू शेयर दैट नंबर? वैसे तो ये नंबर नहीं शेयर किया जा सकता इस वक्त, नंबर ऑफ इश्यूज पेंडिंग, एंड जैसे जैसे उनके कोई ना कोई रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला वी विल कीप द इन्वेस्टर्स अपडेटेड अबाउट दैम। बेशुमार है सर, वो कोई चीज़ अलाउ करते हैं एक पीरियड में, दूसरे पीरियड में डिसअलाउ कर देते हैं, तो इट इज़ प्री मैच्योर में इतनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है वहाँ पर। एक चीज़ डिसअलाउ की एक पीरियड में, दूसरे पीरियड में अलाउ हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आवर रिलेशनशिप विद आवर रेगुलेटर आर इम्प्रूविंग एंड वी आर ऑन द राइट पाथ। और रेगुलेटर के साथ हमारे जितने इश्यूज हैं, हम वी आर होपफुल एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि उनकी रेजोल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द कंट्री होगी। So thank you very much to all of you ji for your cooperation, for your presence and for your raising your questions. I hope कि we have responded them satisfactorily और आपके सभी concerns और questions properly address हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अब we will have another session after disclosing our next financial accounts. Hopefully soon we will disclose them. और thank you very much once again to all of you, and accordingly we conclude this session right now ji. Thank you very much ji. Thank you. Allah.